Hathras is now an international headline. A kilometer away from where a 20-year-old Dalit woman was raped and murdered, there is a throng of media crews jostling with the police. No one, not one of us, is being allowed past this barricade. Outside of war and conflict zones, there has perhaps never been this kind of a physical barrier to journalists doing their job, at least not in recent memory. This is what happens when we ask why we are being stopped. आप लोग हमें आगे क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या कारण है? आपको क्या ऑर्डर्स हैं कि आप जर्नलिस्ट को आगे नहीं जाने दे रहे? सर कोई वजह तो होगी, कोई ऑर्डर तो होगा. It is clear that standing around here at the blockade and the barrier is pointless. We decide to see if we can walk through the sprawling fields at the back to reach the village of the Dalit victim. After the police stopped all media, all journalists from accessing the Hathras village, we decided to try a different way, to walk through these fields to see if maybe by walking a few kilometers we could find another way of getting access. Of course, standing in these fields is deeply ironic and disturbing because remember, in her dying testimony, the woman, the 20-year-old Dalit woman, said that she was gang raped and killed in a bajra field. Now, of course, predictably, what has happened is that the whisper campaign, the character assassination of her, has begun in hushed whispers, especially in the so-called upper caste quarters. Caste tensions between the dominant land-owning Thakurs and the Dalits are now simmering. Most people are hesitant and very scared to talk on camera. They're even hesitant to show us how to navigate our way to the village, over nalas and open drains, under barbed wires and makeshift boundary walls, or through the expanse of vast open fields that seem to stretch till the horizon. नमस्ते, नमस्ते जी. तो आपका नाम पूछ सकती हूँ? क्या नाम है आपका? चंद्रवती. चंद्रवती जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये जो हादसा हुआ है, आप क्या सुने इसके बारे में? नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं मालूम कुछ? नहीं कुछ. आप क्या उसी गांव में रहते हैं? नहीं, हमारा तो ये पास है. कुछ तो सुना होगा आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना. मतलब औरत होने के नाते आपने कुछ तो सुना होगा? नहीं. कुछ नहीं बोलना चाहेंगी इस पे? नहीं, हम नहीं कुछ. बहुत से लोग कुछ नहीं सुना. बहुत से लोग जो हमें यहाँ मिल रहे हैं वो यही कहते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं सुना. सुना भी है तो बोलते हैं लेकिन कैमरा के ऊपर बिल्कुल नहीं बोलते. एंड ऑफ कैमरा there are competing narratives that are building up here on the ground as the media access to the village is completely curtailed. The women we meet tilling the fields are mostly from the Jatav community. They are Dalits. The victim was Valmiki, another Dalit subgroup, and even lower on the hierarchical totem pole. In a field exactly like this one, the 20-year-old woman was found, according to her brother Sandeep, in a pool of blood without any clothes on, her limbs paralyzed, strangled with her own dupatta. क्या हुआ बताइए? ये मेरी बहन और मम्मी थी और मेरे भाई भी थे. तो ये खेत में चारा लेने के लिए गए थे. तो भैया एक बोझ काट के वो घर पे डालने के लिए चले गए. भैंस को वहाँ पे पानी पिलाने लग गए. मम्मी और मेरी बहन ये वहाँ पे काटती रहीं खेत में घास. जी. तो वहाँ पे ये गांव के 5-6 लड़के थे वैसे. तो ये वहाँ पे रोड पे घूमते रहे. इनका पहले से ही प्लानिंग हो गया था. अच्छा. हाँ. तो मम्मी और वहाँ पे थोड़ी सी दूरी लग रही थी. बहन थोड़ी इधर थी. तो पीछे से आए वो 4-5 लड़के. उन्होंने बहन के ऐसे हाथ मार गर्दन पे. दुपट्टा पहनी हुई थी तो दुपट्टे से एकदम गला घोट दिया. थोड़ा इस तरफ आ जाए. हाँ. दुपट्टे से गला घोट दिया और बाजरे के अंदर खींच ले गए. और थोड़ी देर में मम्मी को पता चलता है तो मम्मी वहाँ से वापस ही आती हैं. मम्मी आवाज़ देते हुए. तो वो भैया आए. फिर वो वहाँ पे हमारे नज़दीकी थाना पड़ता है चंदपा, वहाँ लेके गए. वहाँ वो तो होपलेस हो गए तो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई. वहाँ से फिर हॉस्पिटल लेके गए, हाथरस बागला हॉस्पिटल. वहाँ 1-2 घंटे रखा. उन्होंने बोल दिया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया उन्होंने. वहाँ बहन मेरी 14 तारीख को ये घटना है, 14 को ही ये वहाँ पे रेफ़र कर दिया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए. वहाँ पे बहन अभी कल तक मतलब ठीक रही. मतलब होश था उसको. हम देखने भी जाते थे, उसको होश था. हमें बोलती थी कि ये वेंटिलेटर पे थी वो.
और 22 तारीख से वेंटिलेटर पे आई। वैसे और बहुत लड़ाई की उन्होंने जीने के लिए, और पुलिस को बयान भी दिया। पुलिस को बयान भी दिया उन्होंने, और 22 तारीख से वेंटिलेटर पे आई वो। और आपको क्या कह रही थी परिवार को? बस यही कह रही थी कि मुझे ठीक कर लो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। हमने बोला कि ठीक हो जाएगी जब ही ले जाएंगे तुझे घर। कह रहे मुझे मरवाओगे, यहाँ ट्रीटमेंट सही नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल में। ये अलीगढ़ की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे मरवाओ, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी क्योंकि वो गले में प्रॉब्लम थी उनकी हड्डी, और मैं सांस नहीं ले पा रही अच्छी तरीके से, ना ही हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, और उनकी जीभ भी कटी हुई थी, अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी, और पैरालिसिस भी हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ गर्दन की 3 नसें वो मतलब हड्डी टूटी हुई थी। अच्छा। और ये रीढ़ वाली हड्डी भी टूटी हुई थी। From a hospital bed, even as she was dying, she named the men who she said raped her and eventually killed her. There is a video recording also of this dying testimony. Family members say this is authentic. But in the villages in and around Hathras, the Thakurs are now emboldened by a senior police officer claiming that no rape took place at all. A narrative of a so-called honor killing is being backed by the powerful upper caste community who insists that the 4 men arrested by the police are innocent. आप क्यों मानते हैं ऐसा? कैसे माने? लड़की झूठ क्यों बोलेगी? वो तो अस्पताल के बिस्तर पे लेट के लड़की ने एक ही को नाम लिया है। लड़की ने नाम लिया है ना, संदीप का। संदीप का, बस संदीप नहीं। लड़की ने बलात्कार की बात की है। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि परिवार ने खुद किया अपनी लड़की को? ये आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जे सब बेकसूर हैं, 3 आप ये मानते हैं? Caste discrimination has long been a way of life in these villages. Food is sometimes thrown on the ground by Thakurs and Pandits to avoid physical contact with Dalits. Separate enclosures are common, and the community even recalls a time when the finger of a villager was cut off for straying into a Thakur's fields. The aggressive assertions by the dominant caste have made the Dalit community fearful. नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम बता सकती हैं? राजेश। यार मेरा नाम बरखा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे बताओ, ये जो हादसा हुआ है आप क्या सुने इसके बारे में? हमें कुछ भी नहीं पता है, हम तो अपने काम से काम रखते हैं। आप कुछ तो सुने, आप औरत भी हैं, आपको भी लगता होगा किसी औरत के साथ ऐसा हुआ? उसके साथ हुआ जो भी हुआ, बस इतना है, बस उसके साथ गलत हुआ। ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि किसी भी औरत के साथ ये हो सकता है। अब आप लोग जो औरतें हैं गाँव में, उनको डर लग रहा है क्या? नहीं, हमें ऐसे डरेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? But now we have walked several kilometers through the fields and are almost at our destination. A local villager and upper caste landowner is keen to speak to us. His narrative is the same. Our boys are blameless, he argues. 20 साल की लड़की थी, आपका दिल नहीं टूटा? 20 साल को हमारी ही लड़की थी, जो मान चलो। तो आपकी लड़की थी तो आप ऐसे लेकिन हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है कि किसने मारा इसको। ये नाजायज बच्चे फंसाए हुए। तो आपको कैसे पता? अगर आपको मालूम नहीं कि किसने मारा है तो आपको कैसे पता है कि जो फंसे हैं वो नाजायज? जब वहाँ पर चारा काट रहे तो यहाँ सभी लोग थे। तो ये कोई मारता, ये लोग मारते, जो उनकी मालूम पड़ती, वो लगा लोगों से इसमें घास काट रहा है, और रवि उसमें इंद्रपाल के साथ घास काट रहा है। वो राम है, परिवार को जानते थे? डेयरी पे, आप इस डेयरी में सुनो, वो डेयरी पे था। और वो भी संदीप यानी था, वो भी मार था। अब बताइए लोग कहाँ से आ गए इसे मारने के लिए? तो लड़की को मारा किसने फिर? मारा कि ये तो घर वाले जाने। We are now at the edge of the Bulgari village and are proceeding to go ahead to meet the Dalit victim's family when suddenly police arrives and orders us to pack up and leave. जा रहे हैं। नहीं जाइए, चलिए प्लीज। सर हम आगे क्यों नहीं जा सकते? अब इस बारे में हम नहीं बना सकते हैं, वो प्लीज वहाँ जाइए। पर ये तो हम खेतों में हैं, हम गांव में हैं, हम क्यों नहीं जा सकते यार? कुछ तो बताइए। अच्छा, आप मेरा वीडियो ले रहे हैं, जो हम पुलिस का वीडियो ले रहे हैं और पुलिस हमारा वीडियो ले रही है। बहुत किसानों को नुकसान क्यों कर रहे हैं खेतों में चल रहे हैं? ये कहते हैं हम। अच्छा, पुलिस वाले हमसे नाराज हैं कि हम काफ़ी किलोमीटर चल के गांव के अंदर आए। हम गांव तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन यहाँ जो पुलिस अफसर तैनात हैं ये हमें आगे नहीं जाने दे रहे। हमने बहुत कोशिश की। ये कहते हैं कि हम वहाँ जाके खड़े हों जहाँ बाकी मीडिया है और हमें ये आगे नहीं जाने देंगे। हमने दिल से कोशिश की। वी वॉक्ड सेवरल किलोमीटर्स, वी रीच द एंड पॉइंट एंड देन
we reached here to be told that we must not be present here. Now here's what's happening. Because we are not being allowed to report the story from the village, because we are not being allowed to talk to the family, to different families, what's ended up happening is that the truth has become, in a sense, the byproduct of a very, very sharp caste divide. So if you speak to the upper caste quarters, they are putting out a counter narrative, and those who are from the Dalit community are scared to speak on camera. We did speak with some of the women who were working in the fields, and initially they were scared, but one woman said, जो इस औरत के साथ हुआ वो किसी और औरत के साथ ना हो, न्याय होना चाहिए. We are swiftly placed in a police jeep and politely told we must get out at once. हम बहुत किलोमीटर गाँव के बीच में चल के पहुंचे, तो अब हमें वापस भेज दिया गया है. लेकिन सवाल मैं फिर भी पूछूंगी, दो द पुलिस इज बीइंग वेरी काइंड बाय गिविंग अस अ लिफ्ट. सवाल मैं यही पूछूंगी कि भाई क्यों नहीं मीडिया को एक्सेस दी जाए. कुछ पता नहीं चलता. So here we are, back where we started, and the question still remains: why is the media not being given access to this story? Back on the highway, we meet a young child. In the day, he came running through the fields to talk to the media. He says he's a cousin of the victim. He says the family's phone has been shut down. They've all been locked inside. They want to speak, but are not being allowed to. गांव में अभी क्या हालात है? कुछ नहीं, गांव में तो ऐसे ही हाल है. पुलिस वाले घर में से निकलने नहीं दे रहे. घर में क्या नहीं करने दे रहे? निकलने नहीं दे रहे. घर में से कुंडी लगा दी, सबको बंद कर दिया है. तो आप कैसे निकले? मैं तो बाहर खेतों में से होके लेकर के आया था. तो आपको पुलिस वाले अभी कह नहीं रहे वापस जाने के लिए? चला तो जाऊंगा पर पकड़ लेते हैं बेर. अच्छा, मैं ट्राई कर रही थी, संदीप जो है भाई हैं, उनका फ़ोन, मैं उनको दिल्ली में मिली थी. फ़ोन कहते हैं कि भाई पुलिस वालों ने जब्त कर दिए. ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ऐसा. क्या बोले पुलिस वाले आपको? पुलिस वाले ने बोला तो किसी का फ़ोन मत उठाना, सबके फ़ोन छिड़ा लिए. नहीं, फ़ोन बंद करने के लिए कहा है कि ले लिए हैं फ़ोन? ले लिए. अच्छा, क्या बोलते हैं? ये बोलते किसी को फ़ोन मत करना और किसी का आया तो उठाना मत. और फ़ोन तो वापस दे दिए पर स्विच ऑफ करके दिए हैं कि कोई मत फ़ोन उठाना. अच्छा, एक बात बताओ कि जो बाकी लोग हैं, माँ बाप हैं, वो अभी कहाँ हैं? लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? भाई कहाँ हैं? वो तो कमरे में बंद कर दिए हैं. वो तो कमरे में बंद कर दिए. पुलिस चारों लंग फैली हुई है, करने नहीं दे रही उनको. The worry now is whether the truth will ever be known and whether justice will ever be delivered. पर आप क्या, एक औरत होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगी? एक औरत के नाते ये बोलना चाहेंगे, ये हादसा बहुत आज इस लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा.